श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 7 of the Ayodhya Kandam, which has 36 verses. Beholding the festivities and finding Kaushalya bestowing large gifts of money on the Brahmanas, Manthara, a hunchback, hereditary maidservant of Queen Kaikeyi, who had accidentally ascended the roof of the palace, inquires of Sri Rama's erstwhile nurse the occasion for the festivities, and being told of Sri Rama's forthcoming installation, feels enraged, and approaching Kaikeyi instigates her to stop the installation. Kaikeyi, on the other hand, rejoices over the news and gifts her a jewel as a token of her pleasures. आज हम अयोध्या कांड के सप्तमः सर्ग अर्थात 7वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 36 श्लोक हैं। इस सर्ग में श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उभारने तथा प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार के रूप में आभूषण देने तथा वर मांगने के लिए प्रेरित करने का वर्णन किया गया है। ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रासादम चंद्र संकाशमारूरोह यदृच्छया। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। A maidservant of Kaikeyi's parents of unknown birth, who had actually lived with her ever since she came to Ayodhya, ascended by chance to the roof of her palace, which shone like a moon because of its white color. As a note, the translator writes that we read in the Padma Purana that a celestial nymph, Manthara by name, was deputed by the gods to carry out their mission in the shape of sending Sri Rama into exile and thereby bringing about the destruction of Ravana. She was given away by the king of the Kaikeya territory as a maidservant to Kaikeyi. सिक्त राजपथाम कृतस्नाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रासादाद अन्ववेक्षत। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। From that palace, Manthara, as the maid servant was called, looked around the whole of Ayodhya, whose main road had been watered, which had been strewn with lotuses and lilies here and there. पताका भिर्वरा रहा भिर्ध्वजैश्च समलंकृताम सिक्ताम चंदनतो ये ऐश्च शिरः स्नात जनैर्युताम। सब ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। It had been fully decorated with costly buntings and flags and sprinkled with sandal water, and was crowded with men that had gone through a ceremonial bath by washing their head as well, which was ordinarily left out apparently because of their growing long hair. माल्य मोदक हस्तैश्च द्विजेन्द्रैर
भिनादिताम शुक्ल देव गृह द्वाराम सर्ववादित्र नादिताम. The city was rendered noisy on all sides by the chief of the Brahmanas, moving hither and thither with flowers and balls of sweets, for being offered as an auspicious present to Sri Rama on the occasion of his installation in their hands. It contained temples with white doorways made of crystal and was resonant with the sound of all sorts of musical instruments. संप्रहृष्ट जनाकीर्णाम ब्रह्म घोष निनादिताम प्रहृष्ट वर हस्त्यश्वाम संप्रणः दितो गोवृषाम. श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं. देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं. सब प्रकार के बीजों की मनोहर ध्वनि हो रही है. अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है. श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं. Nay, Ayodhya was thronged with excessively delighted men, echoed with the loud chanting of the Vedas, and was distinguished by excellent and overjoyed elephants and horses, as well as by roaring bulls and cows. हृष्ट प्रमुदितैः पौरैरु इच्छित ध्वजमालिनीम् अयोध्याम मंथरा दृष्टवा परम विस्मयमागता. सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं. अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ. Manthara was seized with great wonder to see Ayodhya brimming over with citizens, thrilled and overjoyed at the news of Sri Rama's installation and decked with rows of tall flags. सा हर्षोत फुल्ल नयनाम पांडुर्क्षम वासिनीम अविदूरे स्थिताम दृष्टवा धात्रीम पप्रच्छ मंथरा. उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा. उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी. उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा. Seeing Sri Rama's former nurse standing not very far from her, dressed in white silk, her eyes blooming with joy, the said Manthara inquired of her. उत्तमेन भी संयुक्ता हर्षेणार्थ परासती राम माता धनम किम नु जनेभ्यः संप्रयच्छति. How is that Empress Kaushalya, Sri Rama's mother, full of supreme joy, is freely giving away riches to men, though devoted to wealth herself? अतिमात्रम प्रहर्षः किम जनस्यास्य च शंस में कारिष्यति किम वापि संप्रहृष्टो महीपतिः. Please also tell me wherefore such excessive rapture is being felt by these people of Ayodhya, and what is the overjoyed emperor going to get done? धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ. आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? विदीर्य माणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचक्षे अथ कुब्जाय भूयसीम राघवे श्रियम. Bursting with joy, the nurse for her part forthwith spoke to the hunchbacked maid servant with supreme delight of immense fortune in the shape of sovereignty being conferred by the emperor on Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha.
श्वः पुष्येण जित क्रोधम यौवराज्येन चानघम राजा दशरथो रामाम भिषेक्ता ही राघवम। श्री राम की धाई तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। Tomorrow, under the asterism of the Pushya Nakshatra, she added, will Emperor Dasharatha positively install in the office of Prince Regent the sinless Rama, a scion of the Raghuvamsha, who has conquered wrath. धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रम मर्षितः कैलास शिखराकारात् प्रासादाद वरोहत। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। Filled with indignation to hear the report of the nurse, the hunchback maidservant Manthara, for her part, got down at once from the roof of the palace, which resembled in shape a peak of Kailash. सा दह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी शयानामेव कैकेयीमिदं वचनम ब्रवीत। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, Burning with anger, Manthara, who scented foul play in the move of the emperor, spoke as follows to Kaikeyi, even while she was reposing on her bed. उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम त्वाम विवर्तते उपप्लुत मघौघेन नात्मान मव बुद्ध्य से। मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्अवस्था का बोध नहीं होता। Get up, O deluded one! How can you keep lying down? Peril stares you in the face. You do not perceive yourself threatened by a flood of misery. अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकट तसे चलम ही तव सौभाग्यम नद्याः स्रोत इवोषणगे। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हांका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। Though loathed by the king, you boast of your good luck in the shape of the goodwill of your husband, endowed as you are with a graceful appearance. Like the current of a river in hot weather, your good looks is but effervescent. एव मुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषम वचः कुब्जया पाप दर्शिन्या विषादम मगत परम। इसमें भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। Addressed in a harsh language as aforesaid by the enraged hunchback, who suspected foul play in the installation of Sri Rama as Prince Regent, Kaikeyi, for her part, gave way to great sorrow. कैकेयी त्वब्रवीत कुब्जाम कच्चित् क्षेमम न मंथरे विषर्ण वदनाम ही त्वाम लक्ष्ये वृष दुखिताम। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। Kaikeyi, in her turn, replied to the hunchback as follows: Is not all well, O Manthara?
for I find you dejected in appearance and sore afflicted. मंथरा तु वचः श्रुत्वा कैकेयी मधुराक्षरम् उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यं वाक्य विशारदा. Incensed to hear the question of Kaikeyi, who was couched in sweet accents, Manthara, for her part, who was a master of expression, spoke as follows. सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्. Nay, getting all the more dejected to hear the nonchalant question of Kaikeyi, the hunchback, who posed to be her great well-wisher, replied as follows, inspiring dejection into Kaikeyi's mind and estranging her from Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha. मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी. वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई. उसके प्रति अपने हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली. अक्षयं सुमहद देवी प्रव्रतम त्वद्विनाशनम रामम दशरथो राजा यौवराज्ये अभिषेक्ष्यति. देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है. कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे. The very great work of ruining you, against which there is no remedy, has commenced, O Queen. King Dasharatha is going to install Rama in the office of Prince Regent. सा सम्यगाधे भये मग्ना दुख शोक समन्विता दह्यमानान लेनेव त्वदिधतार्थ मिहागता. यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ. चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ. Plunged in fathomless fear on your score, nay, full of agony and grief, and burning as it were with fire, I as such have come here to make known to you your best interest in this matter. तव दुखेन कैकेयी मम दुखम महद भवेत त्वद्वृद्धो मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः. कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुख में पड़ना होगा. तुम्हारी उन्नति में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है. Great suffering is sure to come to me due to your suffering, O Kaikeyi, and my advancement is sure to follow in the wake of your advancement. There is no doubt about it. नराधिप कुले जाता महिषी त्वम महीपतेः उग्रत्वम राजधर्माणाम कथम देवी न बुध्यसे. देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो. You were born in the race of kings and are the favorite consort of a king. How is it that you do not know the sternness of kingly duties, O royal lady? धर्मवादी शठो भर्ता सुलक्षणवादी च दारुणः शुद्ध भावेन जानीषे तेनैव मति संधिता. तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ. मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं. तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई. Your husband is deceitful though professing piety, and hard-hearted though using sweet expressions. Still you consider him as blessed with a guileless heart, and in this way stand deceived by him. उपस्थितः प्रयुञ्जानस्तवयि शान्तव मनर्थकम् अर्थे नैवाद्य
ते भर्ता कौसल्याम योजयिष्यति। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रही हैं। Standing by your side, speaking kind words that have no meaning, your spouse is going this very day to invest Kaushalya alone with fortune in the shape of a sovereign powers for her son. अपवाहयतु दुष्टात्मा भरतम तव बंधुषु कालिये स्थापयिता रामम राज्ये निहत कंटके। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। Having sent away Bharata to the kingdom of your kinfolk, the evil-minded king for his part will install Rama next morning on the throne of Ayodhya, now that all the thorns have been completely removed. शत्रु पति प्रवादेन मात्रेव हित कांपया आशी विष इवांगेन बाले परिधृत स्तुवया। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। Like a venomous serpent reared by a mother on her own person with intent to do good to it, O puerile lady, an enemy under the application of a spouse has been held by you close to your bosom. यथा ही कुर्याच् त्रुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः राज्ञा दशरथे नाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। Along with your son Bharata, you have been dealt with by Emperor Dasharatha quite in the same way today as an enemy or a serpent would behave if ignored. पापे नानृत शांतवेन बाले नित्यम सुखोचिता रामम स्थापयता राज्ये सानुबंधा हता हयसी। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप या दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। Ever fond of ease, you have indeed been ruined with your friends and relations, O young, inexperienced lady, by the wicked king uttering falsely kind words by going to install Rama on the throne of Ayodhya. सा प्राप्त कालम कैकेयी क्षिप्रम कुरु हितम तव त्रायस्व पुत्रमात्मानं माम च विस्मय दर्शने। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो, उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा कर अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। As such, O Kaikeyi, promptly accomplish what is opportune in your interest and protect your son, your own self, and me too, O lady of marvelous insight. मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात् सा शुभानना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखे व शारदी। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति
उद्दीप्त हो उठी। Flooded with joy to hear the report of Manthara, that lady of charming appearance rose from her bed like the orb of the autumnal full moon. अतीव सातु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। Full of amazement and extremely gratified, the celebrated Kaikeyi, for her part, gave away to the aforesaid hunchback a wonderful and shining jewel. दत्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा कैकेयी मंथरां हृष्टा पुनरेवा ब्रवीदिदम्। इदं तु मंथरे मह्यमाख्यातं परमं प्रियम् एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। Feeling positively rejoiced on having bestowed the jewel on that hunchback, Kaikeyi, the foremost of young ladies, once more spoke to Manthara as follows. This is indeed a most welcome news broken to me by you, O Manthara. This is a delightful tiding to me. What more, for that matter, should I do for you? रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद राजा रामम राज्ये अभिषेक्ष्यति। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। I perceive no difference between Rama on the one hand and Bharata on the other. I am therefore pleased to know that the emperor is going to install Sri Rama on the throne. न मे परम किंचिदितो वरम पुनः प्रियम प्रिया रहे सुवचम वचो अमृतम तथा हवा हयावोच स्तवमतः प्रियोत्तरम वरम परम ते प्रददामि तम वृणु। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। No exquisite and agreeable nectar-like expression other than this could of course have been easily addressed to me, O woman deserving kindness. Since, however, you have spoken as aforesaid to me, I therefore offer to you another dearest boon. Please ask it of me. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 7 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane। Om आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।